Good morning, students. This is Virendra, your information technology teacher, and I am here to bring one more video related to your Java programming. Students, as you know that you are staying at your home and you are trying to cope up with this COVID situation. But students, we have to fight and we have to win with COVID-19. With this wish, let us start this video. So let me give you details about what we are going to study in this video. Students, as you know that in the previous video, we have finished about your operators, and apart from that we have already completed our data types. You can find the link in the description also. And apart from this, you can also finish the selection structure. Now you have to understand what is selection structure. So before starting the video, let's welcome to all my dear students. In this, let's have a small brief about what is selection structure. Suppose you are doing some work. So if you are doing any kind of work, maybe that work will be completed or may not be completed. It means that the particular thing is depend on particular condition, right? That condition is satisfied, then maybe the work is completed, and if condition is not satisfied, the maybe work is not completed. It means that out of two statements, there is only one is getting selected. Okay, so this topic is known as control flow, right? This topic is known as control flow. And in the previous video you have watched a very different topic, and the topic is related to your different data types, and apart from different kind of operator variables, right? How to, and I have given some different kinds of programs also, right? And that programs is a very small programs through which you can able to understand many kinds of things. Likewise, if you talk about the control flow, it means that whenever condition getting satisfied, you are able to have a true statement or maybe the false statement. कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई कंडीशन ले रखी है, कंडीशन अगर सही है तो आपको ट्रू स्टेटमेंट में जो भी कुछ लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो जो फॉल्स स्टेटमेंट पे आपने लिखा है वो चीज़ आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल कंट्रोल फ्लो जो है ये देखा जाए कि जो कंपाइलर है जब आपके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, तो एग्जीक्यूट करते समय वो कंडीशन को चेक करेगा कि कंडीशन में वो जो आपने वैल्यूज पुट किए हैं और जो ऑपरेटर्स यूज किए हैं आपने उन सब का कैसे यूज किया है। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कई तरह के ऑपरेटर्स आपने पढ़े हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। इसके अलावा आपको मैंने बिट वाइज ऑपरेटर अभी नहीं पढ़ाया है, वो आने वाले वीडियोस में आपको पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से जो भी ऑपरेटर्स आपने पढ़े हैं उनका जो यूज है वो अब हम यूज करेंगे। हम वो यूज क्या है, वो यूज ये है कि अब आप जब कंडीशन लिखेंगे, आपने लिखा a ग्रेटर देन b, इसका मतलब क्या हुआ, जो ग्रेटर देन साइन है या ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर, राइट। आपने लिखा a इक्वल टू b या लिखा a नॉट इक्वल टू b, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, इसी के साथ अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कंट्रोल फ्लो है दो पार्ट्स में डिवाइड है आपका। नंबर 1 सिलेक्शन स्ट्रक्चर, नंबर 2 रिपीटेटिव स्ट्रक्चर। इस वीडियो में हम केवल सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में ही बात करेंगे। हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ही आपका रिजल्ट आपका प्रिंट आउट होगा, सेटिस्फाइड नहीं हुई तो फॉल्स स्टेटमेंट आपका प्रिंट होगा आपका। इसी के बेस पर कई सारे छोटे प्रोग्राम्स मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं। मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें
और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ आपके सीखने के लिए है, कुछ जानने के लिए है, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए है, तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी के साथ अब हम आते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे, जहां पर मैंने आपको डिफरेंट डिटेल्स आपको बताई है और इसी के साथ कुछ प्रोग्राम्स भी हम करेंगे। सो प्लीज कम टू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, प्लीज कम। Okay students, now I'm going to start the topic control flow in Java। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप प्रीवियस वीडियो में आपने ऑपरेटर से रिलेटेड कई सारे प्रोग्राम बनाए। यहाँ पर अब हम कंट्रोल फ्लो के बारे में चर्चा करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल, why we require this control flow, why we require this? First of all, this is very much important question for you. As you know that whenever a compiler or interpreter or any translator is there, that will execute your program in sequential manner. It means that when the first instruction is getting executed, then the compilers come to the second instruction, then third, then fourth, likewise, right? But whenever you want that when a conditions getting true, then the execution of a statement is getting done. But how it could be possible? Or sometime you want that you will execute a set of instruction repeatedly, okay, once the condition getting met. It means that first the condition must be true, then the execution will happen. This is called control flow. It means that whatever the instructions are getting executed, that instruction is executed only once the condition getting true, right? So that's why Java provides two kinds of facilities here. Number one, selection structure. Number two, repetitive structure. Okay, so in the selection structure you will get if statement, if else statement, and nested if statement and switch statement. I have written here only two, if else statement and switch statement. But if statement is getting categorized, it means that selection structure getting categorized into three parts. Number one, if statement. Number two, if else statement, and number three, nested if statement, and the last one is switch statement. Now if you talk about the repetitive structure, so in repetitive structure we'll also have three things. Number one, while statement, do while statement, and for statement. So we'll take the repetitive structure later on, right? So students, now let's come to the selection structure to learn about same. So first of all, I am just going to elaborate about how the selection structure works. I am just taking an example of real life. Okay. So right now one oval box is there. Inside the oval box, it is written here, look outside the window. It means that कि आप खिड़की से बाहर देखो। अब आपने एक सवाल पूछा, इज इट रेनिंग? आपके पास दो ही जवाब आएंगे। नंबर वन, ट्रू। इफ इट इज ट्रू देन यू हैव टू कैरी योर अम्ब्रेला। इफ इट इज फॉल्स, डोंट कैरी योर अम्ब्रेला। तो रियल लाइफ में देखिए, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो रही है तो ही आपका एग्जीक्यूशन हो रहा है। फॉल्स हुआ तो आपको उसी के हिसाब से रिजल्ट आपको मिल गया। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। In the next slide, I am just going to elaborate about what the selection structure consists of. Okay, as you know that Java provides two things, the if-else statement and second one is switch statement. Right? Both the things consist of a block of code. Yes, please remember block of code. Right?
Block of code means it because whatever the sequence of instructions are there, that already includes in curly brackets. Yes, please remember, whatever things are written in the inside the curly bracket, that things are known as block of code, right? So let's talk about if else statement, and the first one is if statement. The first one is if statement. So in if statement, whatever the things is executed, whatever the instructions are getting executed, it will execute it only when the condition evaluates, yeah, a condition is become true or false. Likewise, I have given two things. On the left side, this is the syntax. This is the syntax, or on the right side, this is the example. Okay, if, and then after you will have the parenthesis. Inside the parenthesis, you have to write the condition, right? And then put the curly bracket and opening curly bracket and a closing curly bracket. Inside them, you have to write the statement. Likewise, I have written here if percentage greater than equal to 40. Then I have then put one in the curly bracket. I have written here system.out.println and then passed and curly bracket closed. Right? So this is the one kind of one. You can say syntax and with your example. Right? Let's come to the next one. This is one example I have taken here. First of all, I have taken the percentage formula here. So for having the percentage, I have declared here three variables. Total marks equal to 400, marks obtained 346, and then one more variable, percentage. And this is the formula for the percentage. I have already told you regarding this. Now I have used the if statement here. If percentage greater than equal to 33, ठीक है, कि अगर यहाँ पर 33 से ज़्यादा है तो आप पास माने जाएंगे. तो अब आपको यहाँ लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, system.out.println यू आर पास. अब मैंने इसको रन किया तो बॉटम आप देखिए यहाँ लिखा हुआ यू आर पास. ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ. नेक्स्ट हमारा है मैं इफ स्टेटमेंट के बारे में ही आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर मैं, कि द एक्सप्रेशन गिवन इन राउंड ब्रैकेट. राउंड ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस की बात कर रहा है ये. राउंड ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस, यानी पैरेंथेसिस के अंदर जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो क्या है, वो वहां पर क्या लिखेंगे आप, कंडीशंस. यस, एन एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर. यानी कि आप यहाँ पर जैसे लिखा है ए ग्रेटर देन बी, तो ए ग्रेटर देन क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है यहाँ पर. अगर आपने लिखा है ए एंड ओके ए एम्परसेंड एम्परसेंड, ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है. तो मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता रखा है कि कंडीशन जब कभी भी बनाई जाएंगे या तो रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे या फिर आप लॉजिकल ऑपरेटर का ही यूज करेंगे आप. ठीक है, when the condition evaluates the answer as true, the block of code is executed, otherwise not. Okay, and if you have only one statement, yes, please be remember, inside the if statement, if you are having only one statement, then the curly brackets are optional. If you want, you can put it down. If you don't want, you can not use that. आप यूज मत करिए, आप उसको, ऑप्शनल है ये, राइट. लेकिन ध्यान है केवल एक स्टेटमेंट है तभी. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताने की कोशिश की यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट और उसका एग्जांपल. लेफ्ट साइड में आप देखिए वो आपका सिंटेक्स है और राइट साइड में उसका एग्जांपल है. ठीक है, मैंने क्या लिखा है देखिए यहाँ पर, इफ आई हैव यूज्ड पैरेंथेसिस, expression means condition, curly bracket open, then after curly bracket close, inside the curly bracket you can have to write statements and then put else. अब जो else का जो statement आप लिखेंगे वो भी आप statement के अंदर ही लिखेंगे. आप whatever statement you want to write as a false statement, you have to write in the curly brackets. Right, here there is two statement,
तो कर्ली ब्रैकेट इज मैंडेटरी, यस कर्ली ब्रैकेट इज मैंडेटरी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा है इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 देन व्हाट इज द प्रिंट आउट, पास्ट, एल्स फेल। यानी कि अगर 40 से नीचे है तो आप फेल माने जाएंगे, 40 से ऊपर है तो आप पास माने जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या हो गया यहाँ पर, एक तरह का ये एग्जाम्पल है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये रहा आपका एग्जाम्पल। यहाँ पर सेम मैंने फॉर्मूला मैंने वही यूज किया है यहाँ पर जो मैंने परसेंटेज के लिए पिछले प्रोग्राम में यूज किया था, और यहाँ पर मैंने कंडीशन चेंज कर दी है। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, तो पहले मैंने एक ही स्टेटमेंट लिया था, अब मैंने यहाँ पर 2 स्टेटमेंट ले लिया। यहाँ पर मैंने एल्स को बढ़ा दिया है, एल्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है यू आर फेल। अब देखिए मैंने यहाँ पर मार्क्स जो ऑब्टेन्ड लिखा है 100 लिया है। ठीक है, तो 100 की जो भी परसेंटेज आई होगी वो कंपेयर हो जाएगी आपके यहाँ पे 33 से। कंपेयर होने के बाद यहाँ पे जो रिजल्ट है आप फेल हैं आप। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू योर ऑल प्रोग्राम्स इन योर मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बनाइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बनाएंगे तभी आपको जावा समझ में आएगी आपको, राइट। चलिए और स्टूडेंट्स एक चीज़ और, एंड आई थिंक यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, ओके। आपको मेरी जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी लॉजिक मैंने देने की कोशिश की है, ज़रूर आपको पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं, अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं तो उनको हम कैसे उनको कैसे एक साथ यूज़ करेंगे। यहाँ पर अब बारी जो आती है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। मैंने इसका एग्जांपल मैंने आपको पिछली बार मैंने आपको बताया था, और आपको मैं एक बार और वही एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको। क्योंकि कभी कभी आप चाहते हैं कि आपको जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो इवेल्युएट तो हो, लेकिन वो दो से ज़्यादा की कंडीशन एक्सप्रेशन को यूज़ करने के बाद हो। यानी कि आपको करना क्या है, 2 कंडीशंस या 2 से ज़्यादा कंडीशंस, उन सभी को आपस में क्या करना है, आप कॉन्कैटिनेट करना है, कंबाइन करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, एक बार मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आप देखिए यहाँ पर इस स्टेटमेंट देखिए मैंने लिखा है परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। एक और मैंने लिखा है कंडीशन ग्रेट लेस देन इक्वल टू 60। ये दोनों ही चीज़ें ब्रैकेट के अंदर हैं, पैरेंथेसिस के अंदर है ये। इसके बाद अब इन दोनों को आपने m% से 2 बार m% है, लॉजिकल ऑपरेटर इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड, इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड। इसको आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, फिर वही कर्ली ब्रैकेट आपने यूज़ किया, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने अपने जो स्टेटमेंट है उसको आपने लिख दिया। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर इन दोनों को फिर अलग अलग कर दिया गया है। अगर आप इस चीज़ को नहीं लिखना चाहते हैं आप, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग आपको लिखना होगा। परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 40, वो आपको अलग अलग, यानी कि ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं आप उसको अलग अलग इस तरीके से लिख सकते हैं आप। अगर 40 से कम हुआ तो फेल माने जाएंगे, 60 से ऊपर है तो आप फर्स्ट डिवीजन माने जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन से आप पास हैं आप। चलिए प्रोग्राम देखते हैं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये रहा आपका प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, केवल और केवल मैंने यहाँ पर जो परसेंटेज का फॉर्मूला है वही मैंने यूज़ किया है, मार्क ऑब्टेन कर दिया है 250, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 2 कंडीशंस ले ली हैं यहाँ पर, एक मैंने लिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 40 और एक लिया है मैंने लेस देन 60। और यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट में जो प्रिंट आउट है लिखा है मैंने प्रिंट पास विद सेकंड डिवीजन, और यहाँ पर फिर मैंने एक और इफ स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन, यानी कि अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती है तो नेक्स्ट कंडीशन आपकी चेक होगी यहाँ पर कि क्या परसेंटेज ग्रेटर ये 60 से ऊपर है, अगर है तो आप फर्स्ट डिवीजन माने जाएंगे। और अगर ये भी एग्जीक्यूट नहीं होता है आपका, अगर ये भी एग्जीक्यूट नहीं होता तब क्या चेक होगा, परसेंटेज लेस देन 40। अगर ये ट्रू है तो आपका आएगा फेल। तो यहाँ पर देखिए 250 है, 250 कंपेयर हो रहा है परसेंटेज में आपका यहाँ पर 40 से 60 से कंपेयर हो रहा है ये।
और कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा आपका आंसर आया है पास विद फर्स्ट डिवीजन। क्यों? आप 250 के परसेंटेज निकाल लीजिए कितना आएगा, ठीक है, जो भी आएगा वो आप उसी के हिसाब से यहाँ पर आंसर पाएंगे आप। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये प्रोग्राम करके जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। अब यहाँ पर मैंने कोशिश तो की है आपको समझाने के लिए, और घर प्रैक्टिस करना आपका काम है। ओके, चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ये आपका मतलब, पहले मैं आपको बता दूं नेस्टेड का मतलब क्या होता है। सपोज करिए कि आपने इफ स्टेटमेंट को यहाँ बताया आपने, और इफ स्टेटमेंट को बताने के बाद अब आपने क्या किया यहाँ कि आपने इफ के अंदर एक और इफ कंडीशन आपने लगा दिया, कि आपने एक कंडीशन को बताया कि ये ट्रू है फॉल्स है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती थी एक और कंडीशन को चेक करें, और चेक करने के बाद तब जाकर यहाँ पर आपको रिजल्ट मिले। ठीक है, तो अगर इफ के अंदर एक और इफ को आपने मेंशन किया या उसके अंदर भी आपने मेंशन किया तो वो चीज कहलाएगा नेस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर एक आउटर, यहाँ पर देखा जाए कि अगर आपने जो अंदर है यानी इफ के अंदर आपने जो मेंशन किया वो इनर बॉडी के हिसाब से है, और जो उसके बाहर आपने मेंशन किया वो आउटर बॉडी के हिसाब से है। एक बार एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, अगर ऐसा है तो आप पास माने जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर करली ब्रैकेट ओपन है, और करली ब्रैकेट ओपन होने के बाद अब इसी के अंदर जो यहाँ पास है उसी के अंदर एक और कंडीशन है, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75। ठीक है, कि अगर आप पास हो तो पास होने के बाद आपकी जो परसेंटेज क्या 75% है, अगर है तो आपको डिस्टिंक्शन मार्क मिले हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर करली ब्रैकेट यहाँ 2 बार इफ है तो आपको 2 बार आपको यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जितनी बार ओपन किया उतनी बार आपको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, अब बारी की बात है हमारी एल्स की, यानी कि एक इफ स्टेटमेंट हमारा फिनिश होता है, अब आती है एल्स स्टेटमेंट की। एल्स में आपने लिखा है फेल, यानी कि अगर 40 से नीचे है आपका तो आपका फेल आपको जो फेल माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है यहाँ पर। अब आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि इफ के अंदर एक और इफ है, ठीक है, और यहाँ पर 2 बार करली ब्रैकेट ओपन किया गया है, 2 बार आपको क्लोज करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम एक प्रोग्राम की तरफ। ये रहा आपका प्रोग्राम, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया है वही मैंने यहाँ पर करके आपको दिखाया है। ठीक है, मार्क्स मैंने लिखा है यहाँ पर, जो ऑब्टेन्ड है 345 ले लिया है। अब लिखा हुआ है इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 345 का जो भी परसेंटेज ऊपर चेक हुआ, चेक होने के बाद अब ये चेक कर रहा है कि क्या आपकी परसेंटेज 75 से भी ज्यादा है, क्या आपकी परसेंटेज 75 से भी ज्यादा है, अगर है तो आप पास्ड है डिस्टिंक्शन के साथ। तो यहाँ देखिए 2 बार प्रिंट होगा, दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। यहाँ पर जो 40 वाली कंडीशन है वो भी ट्रू हो गई, और जो 75 की कंडीशन है वो भी ट्रू हो गई, इसलिए लिखा हुआ पास्ड विद डिस्टिंक्शन। 2 अलग अलग रिजल्ट आपके पास आए हुए हैं। ओके, अगर ये 40 से, अगर आपका ये 40 से कम हो तो सीधे आपके पास रिजल्ट आता फेल। So students, I hope you are enjoying in this video. Okay, keep enjoying. Okay, and whatever the queries you have, okay, so whenever you are having the virtual meeting you can ask, or you can just give me your doubts on the WhatsApp. Okay, I'm always here to solve your queries, right? So with this I'm coming to the next slide. नेक्स्ट इज सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हम आप आगे बढ़ते हैं, और सिलेक्शन स्ट्रक्चर में अब हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट। यहाँ तक मैंने आपको 3 चीजें बताई। मैंने आपको इफ स्टेटमेंट हो गया, इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, 3 चीजें मैंने आपको बताई आपको। अब बारी है स्विच स्टेटमेंट की। तो पहले हम समझते हैं कि स्विच स्टेटमेंट होता क्या है। स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड मैचिंग वन वैल्यू आउट ऑफ मेनी पॉसिबल वैल्यूज। मतलब क्या हुआ कि आपके सामने कई सारी पॉसिबल वैल्यूज रखी गई हैं, और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन आपने लिखा, और उन्हीं में से कोई पॉसिबल वैल्यूज आपने वहाँ पर एक्सप्रेशन में यूज की है। तो होगा क्या कि वहाँ पर अगर वो मैच करेगा तो आपके सामने रिजल्ट आएगा, अदरवाइज डिफॉल्ट जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो ब्लॉक ऑफ आपका कोड है वो एग्जीक्यूट तभी होता है जब कोई भी एक वैल्यूज मैच कर जाती है दिए हुए
ऑप्शन से दिए हुए पॉसिबल वैल्यूज से। ठीक है, तो ये चीज़ आप उसको बिल्कुल याद रखिएगा कि यहाँ पर पॉसिबल जो आपके वैल्यूज़ हैं उन्हीं में से मैचिंग होती है एक वैल्यू की। अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपके स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर सिंटेक्स क्या है। एक सिंटेक्स हम देख लेते हैं यहाँ पर और प्रॉपर तरीके से आप देखिएगा। सबसे पहले एक कीवर्ड लिखा गया है स्विच, पैरेंथेसिस यूज किया गया है, उसके अंदर आप कंडीशंस को लिखेंगे आप। ठीक है, अच्छा, फिर आपने कर्ली ब्रैकेट लगाया, कर्ली ओपनिंग लगाया और क्लोज का लगा दिया। उसके बीच में अब आपको एक और कीवर्ड आपको लिखना है। कीवर्ड है केस। केस के बाद आप एक कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आप लिख सकते हैं आप 1 2 3 लाइक दिस। फिर आपको लगाना है कोलन। कोलन के बाद आप अपना स्टेटमेंट लिखेंगे और एक आपको कीवर्ड आपको लिखना है ब्रेक। अभी मैं आने वाले स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि ब्रेक जो कीवर्ड है क्यों यूज किया गया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं आपकी वो पॉसिबल वैल्यूज हम लिखते जाएंगे। जैसे केस 1, फिर इसके बाद जो स्टेटमेंट है, फिर ब्रेक आपने लिख दिया, फिर केस 2, फिर स्टेटमेंट, फिर इसके बाद ब्रेक लगा दिया, फिर इसके बाद केस 3, फिर से ऐसे करते करते जितने भी केसेस हैं सारे केसेस लिखिए। और एक केस आपको लिखना होता है कि अगर केस अगर मैच नहीं करता है, वैल्यूज मैच नहीं करती है, तो कौन सा स्टेटमेंट आपका प्रिंट होगा। तो एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी आपको लिखनी होती है। ठीक है, तो ये रहा आपका सिंटेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंटेक्स है ये, प्लीज इसको आप रिमेंबर रखिएगा। और चूंकि आप जावा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर केवल सिंटेक्स का ही खेल है। आप प्रॉपर तरीके से सिंटेक्स आपको मालूम ही होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, कुछ डिटेल से मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। यहाँ पर आप एक एक पॉइंट्स के फॉर्म में हैं, एक एक करके इसको आप देखिए। विद इन द स्विच स्टेटमेंट देयर कैन बी मेनी केस स्टेटमेंट। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि स्विच के अंदर जो पॉसिबल केस स्टेटमेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा या कई सारे केसेस आप लिख सकते हैं। आप एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस होते हैं कंडीशंस। द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द कांस्टेंट। जो कांस्टेंट वैल्यूज आप लिखेंगे केस कीवर्ड के बाद, उन्हीं से कंपैरिजन होगा और उसके बाद मैचिंग होकर के आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इफ द एक्सप्रेशन इवेलुएट सम कांस्टेंट, ठीक है, अगर आपने जो आपके कंडीशंस लिखी हुई हैं उनसे कांस्टेंट मैच करती हैं तो आपका जो कांस्टेंट 1 है उसका जो स्टेटमेंट है वही आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। रही बात ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ मैं कि अगर जो भी आपने वैल्यूज को मैच करा दी, मैच कराने के बाद अब आपका ब्रेक स्टेटमेंट जहां मिलेगा वहीं से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा और वहीं से आप प्रोग्राम के बाहर आ जाओगे आप। ठीक है, तो ब्रेक स्टेट मतलब इट इज द वन काइंड ऑफ कीवर्ड विच इज यूज्ड टू टर्मिनेट द स्विच स्टेटमेंट। यस, प्लीज बी रिमेंबर, टर्मिनेट द स्विच स्टेटमेंट। ओके, एंड it causes the execution of continue to statement after the switch। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर बस आपको इतना ही समझना है कि ब्रेक स्टेटमेंट का जो इस्तेमाल है वो इसलिए होता है स्विच स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब आपको एक चीज और बता दूं कि अगर कोई भी मैच नहीं मिलता, एक्सप्रेशन में जो कंडीशन जो वैल्यूज लिखी हुई हैं अगर किसी भी पॉसिबल वैल्यूज से मैच नहीं करती हैं तो एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट है वही आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब कभी भी आप स्विच स्टेटमेंट में एक्सप्रेशंस को लिखेंगे आप तो वहां पर आप उसका डेटा टाइप जरूर बताएंगे, बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, क्लियर है। आप यहाँ पर इन्हीं सब का केवल यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखिए, मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने आपके लिए बनाया है यहाँ पर, और इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है मैंने आपको यहाँ पर एक लिख करके अलग से बताया है। लेफ्ट साइड में प्रोग्राम है, राइट साइड में आपका रिजल्ट है। ठीक है, तो अब आपको मैं यहाँ पर बता दूं, आपको सबसे पहले पैकेज डिक्लेयर किया हमने। यहाँ पर जो पैकेज है ऐड के नाम से है, क्लास हमने डिक्लेयर कर दिया, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन डिक्लेयर कर दिया। अब आपको यहाँ से दिखाता हूँ मेन चीज। सबसे पहले क्या करते हैं, एक आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है। जैसे मैंने लिखा टुडे इक्वल टू 7। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि यहाँ पर इसी वैल्यूज को यहाँ पर मैं आप एग्जीक्यूट कराऊंगा, इसी की हेल्प से मैं कंडीशंस को लिखूंगा अब। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पर दो तरह के वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर कर रखे हैं। नंबर 1 टुडे इक्वल टू मैंने 7 ले लिया है, और एक मैंने यहाँ पर डेटा टाइप ले रखा है स्ट्रिंग के नाम से। मैंने डेटा टाइप पढ़ाया है आपको ने। तो जो स्ट्रिंग है वहाँ पर जो वेरिएबल जो उसका नाम है डे है, और यहाँ पर एक ब्लैंक मैंने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, ब्लैंक मतलब कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। और फिर इसके बाद स्विच स्टेटमेंट मैंने लिखा, ब्रैकेट के अंदर मैंने केवल लिखा टुडे मतलब ये हुआ कि अगर 7 लिखा है तो 7 अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और जो डे है उस डे में आप क्या करेंगे, आप जो भी आपके स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं वो चीज आप लिखेंगे यहाँ पर आप। तो प्लीज आप ध्यान से देखिए, इंट टुडे इक्वल टू मैंने 7 लिखा, ये एक वेरिएबल है, इसी की हेल्प से हम एक्सप्रेशंस को बनाएंगे हम। दूसरी चीज, जब आप पॉसिबल वैल्यूज लिखेंगे, पॉसिबल वैल्यूज में जो चीज आप स्टोर करेंगे, किसी न किसी अगर आप स्ट्रिंग को स्टोर करना चाहते थे, स्ट्रिंग का एक वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पर एक डे नाम से एक मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है, और उसी में मैंने ब्लैंक मैंने कुछ ले लिया है। ठीक है, अब आते हैं स्विच केस के अंदर। तो स्विच केस के अंदर आए हम केस 1 देखते हैं। केस 1 मैंने लिखा, कोलन लगाया, कोलन कंपल्सरी है यहाँ पर, 1 के बाद कोलन कंपल्सरी है, और फिर मैंने लिखा डे इक्वल टू मंडे। चूंकि स्ट्रिंग है तो डबल कोटेशन लगाना मत भूलें यहाँ। ठीक है, तो स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है उसके अंदर चूंकि मैंने पहले ब्लैंक ले रखा, डिक्लेयर कर रखा है, अब उसके अंदर मंडे स्टोर हो गया। अब उसके बाद ब्रेक लगाएंगे, ऐसे ही फिर केस 2 लिखेंगे, केस 2 कोलन और डे इक्वल टू ट्यूसडे लिखा, सेमीकोलन, और ब्रेक के बाद भी सेमीकोलन। याद रहे ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होगा, स्विच जो हमारा केस है, स्विच स्टेटमेंट वहां से टर्मिनेट हो जाएगा। अगर कंडीशन मैच कर गई किसी भी एक ऑप्शन से, किसी भी एक पॉसिबल वैल्यू से, वहीं से वो ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होने के बाद आपको मिल जाएगा रिजल्ट। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि जहां पर स्विच लिखा है, स्विच से लेकर लास्ट वाला जो कर्ली ब्रैकेट है, जहां पर जो प्रिंट स्टेटमेंट उससे जस्ट पहले डिफॉल्ट जो स्टेटमेंट है वहां पर, कहने का मतलब क्या हुआ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्विच स्टेटमेंट जो आपने लिखा है वहां से लेकर जो डिफॉल्ट पॉसिबल वैल्यूज है वहां तक केवल आपका कंपैरिजन ही हो रहा है। यहाँ पर जो आपने वैल्यूज दी हुई है वो पॉसिबल वैल्यूज से केवल कंपेयर हो रही है। जो प्रिंट होने का काम है वो प्रिंट होने का काम स्विच स्टेटमेंट के बाहर है। जो प्रिंट होने का काम है उस स्विच स्टेटमेंट के बाहर है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर केस 1 मैंने बता दिया, केस 2 बता दिया, ऐसे ही आप टोटल 7 केसेस मैंने यहाँ बना रखे हैं। और लास्ट में मैंने एक कीवर्ड यूज किया है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब ये हुआ कि यार गलती से आपने 7 की जगह कुछ और वैल्यूज अगर आपने पुट कर दी तो इनकरेक्ट वैल्यूज आपकी जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट आपका वो प्रिंट हो जाएगा। और ठीक है, तो यहाँ डे को लिखा है इनकरेक्ट डे, उसका ब्रेक स्टेटमेंट। अब आपने स्विच स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद अब आपने यहाँ पे लिखा है system.out.println और डे को यहाँ प्रिंट करा दिया है। ठीक है, अब चूंकि ऊपर आपने 2 बार कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है, अब लास्ट में 2 बार हम क्लोज कर देंगे हम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आया होगा कि कर्ली ब्रैकेट स्विच का जो कर्ली ब्रैकेट ओपन किया गया है और उसी के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड्स है। ठीक है, अब लिखना कैसे है, सिंटेक्स आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है यहाँ। अब आपका यहाँ देखिए 7 मैंने लिखा है, तो 7 का मतलब ये हुआ, या 5 लिखा है मैंने यहाँ पर अगर, तो यहाँ पर इसको जो एग्जीक्यूट करेंगे 7 के सामने केस 7, देखिए सबसे केस 7 को देखिए आप, टुडे मतलब 7 है। अब जो टुडे इक्वल टू 7 है, ये जो आपका सीधे आपका मैच करता हुआ बिल्कुल नीचे आ जाएगा। टुडे इक्वल टू 7 है ना आपका। अब देखिए 7 कहाँ लिखा है, 7 बिल्कुल लास्ट पे लिखा हुआ है। 7 दोनों मैच कर रहे हैं यहाँ पर। मैच करने के बाद यहाँ पर हमने प्रिंट लिखा है, डे को हमने प्रिंट कराया है, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा संडे। अगर यहाँ 5 होता तो आता फ्राइडे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा। अब एक आपका और प्रोग्राम है जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप वहाँ पर टुडे इक्वल टू 7 ना लेकर के अगर आप 10 लेते हैं, आप 12 लेते हैं आप, तब क्या रिजल्ट आएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स प्लीज कम टू द नेक्स्ट स्लाइड टू हैव मोर अबाउट स्विच स्टेटमेंट। चलिए देखिए, अब मैंने यहां लिया है इंट टुडे इक्वल टू 10, रेस्ट प्रोग्राम बिल्कुल सेम है। तो जाहिर सी बात है कि मैंने 10 केसेस तो लिए नहीं है यहाँ पर,
केवल 7 केसेस लिए हैं, तो यहाँ मैचिंग हो नहीं पाएगी। जब मैचिंग हो नहीं पाएगी तो आपका क्या होगा, यहाँ पर जो आपका डिफॉल्ट केस है वो प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा इनकरेक्ट डे। ओके, तो ये रहा आपका स्विच स्टेटमेंट के 2 प्रोग्राम्स, और आई डेफिनेटली श्योर दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, so students, I hope you are enjoying a lot. Okay, keep enjoying and subscribe my channel, like my videos also, and whatever the comments you have, just you can give, so that I can just motivate and try to make more and more videos for you in a effective way. Right? Come to the next slide. Okay students, so thank you so much. Okay, और अब हम आते हैं आगे की जो स्लाइड्स हैं उसको भी देख लेते हैं हम। ओके, okay students, so I hope you have enjoyed in this video a lot. Right now this video belongs to only and only selection structure. In next video you will have the repetitive structure, what things are come, how we are going to perform the repetitive structure, how we are going to follow it, what will be the syntax. You will get all the things in the next video, but for the time being it's time to finish up this video. Thank you so much for watching this video. Keep smiling, keep laughing, and be safe during the COVID-19. Yes, you are staying home, wear your mask and sanitize your hands properly. Right? So with this wish, I am just finishing off this video. Thank you so much.